friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, this is our CAT 2020 Slot 1 Quantitative Technique Questions Solutions. I'm sure you have gone through our yesterday's module which was wonderful. ठीक है, आज हम वापस बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर क्वांट. ठीक है, we are going to solve 10 questions. ठीक है, उसके बाद I believe there will be some round, you can say 6 to 7 questions are left. ठीक है, which we'll be doing in the next video. Okay, let's start with this. Okay, question number 11. Now this is very interesting question. ठीक है, the number of distinct real roots of this, ठीक है, equation क्या होगा? दो चीजें यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि this is an equation where I can assume x plus 1 upon x is equal to y, and this is y square minus 3y plus 2 equals to 0. So that is one point you should know. Second point, always remember that whenever you have something in your mind, ठीक है, some equation like x plus 1 upon x, ठीक है, इसका minimum value 2 होगा for all real values. Okay, it is either greater than or equal to 2 or it is less than or equal to minus 2. It is always in this format. Okay, ये याद रहेगा सबको. Great. ठीक है, चलिए we apply it here. ठीक है, so we have what, y minus 2 and this is y minus 1 equals to 0. So this is y is equal to 2 or y is equal to 1. Y is equal to 1 not possible क्योंकि उसकी minimum value तो 2 ही होगी. Yes or no? So that is a possibility. So I can assume y equal to 2. So x की value 1 हो जाएगी. So I can get one real value. Okay. Now another possibilities is कि ये दोनों negative हो जाए. Negative दो negative का multiplication. ठीक है ना? So that is also possible, which is you can say पर क्योंकि ये इक्वालिटी है तो दोनों नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं बनता है. ठीक है, एंड देयर बाय वी हैव ओनली वन रूट पॉसिबल, दैट इज 1. ओके, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर पॉसिबल? देयर इज ओनली वन रूट व्हिच सेज x plus 1 upon x equals to 2, or when I say x plus 1 upon x equals to 2, that happens only and only when x equals to 1. ठीक है, चलो बढ़िया. So I move forward and we go with the question number 12. Very interesting question. ठीक है, I will help you out with two different methods of solving this. A person spent 50,000 rupees to purchase a desktop computer and a laptop computer. So there is a desktop plus laptop. Total amount is 50,000 rupees. Okay, he sold desktop at 20% profit. So this is 1.2D, and he sold laptop as 10% loss. So this is 0.9L, and he got overall profit of 2%. So this is 50,000 का 2%, 50,000 का you can say 1% is 500. ठीक है, okay. So 2% is equal to 1,000. So we are left with 51,000. Okay, and now we are solving. We are interested in finding out the value of desktop computer. So I multiply this first equation by 0.9 and I get what, 0.9D plus 0.9L is equal to, this makes it to be 45,000. So this is 0.3D is equal to 6,000. So D is equal to 20,000. So that's one way of doing it. Yes or no? Now another way, very interesting way. So I know my desktop, I know my laptop, and here I'm getting a profit of 20%, I'm getting a loss of 10%, ठीक है, and I'm getting overall profit of 2%. So 20 minus 2 is 18 and 2 minus 10 is 12. So D or L का value should be in the ratio of 12:18. ठीक है, आई एम अप्लाइंग मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड. ये सुनो, आपने ये सुना था ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट. ठीक है, सो देयरफॉर दिस इज बेसिकली 12:18 का रेशियो, 12:18 का रेशियो, विच इज नथिंग बट 2:3 का रेशियो. सो दैट मीन्स 50,000 में 2:3 का रेशियो करने जाएंगे. सो ये हो जाएगा आपका 20,000 एंड ये हो जाएगा आपका 30,000. ये सुनो, दैट इज 2:3 का रेशियो, एंड देयर बाय डेस्कटॉप की प्राइस is 20,000. Simple? Great.
Okay, great. Question number 13. Among 100 students, X1 have birthdays in January, X2 have birthdays in February, and so forth. Yes or no? If X0 is maximum of X1, X2 up to X12, then the smallest possible value of X0. Now what are they asking us to do? है ना, दे आर टेलिंग अस कि जनवरी फरवरी से दिसंबर के बीच में जो लोगों की बर्थडे है 100 लोगों की, वो है X1, X2 अप टू X12. सो इफ आई ऐड X1 प्लस X2 प्लस X12 वो हो जाएगा 100. ठीक है, और फिर मैं इनमें से मैक्सिमम लूंगा. ठीक है, मतलब मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ? सो लेट अस से यहाँ पे 2 लोग थे, यहाँ पे 3 लोग थे. ठीक है, यहाँ पे 1 बंदा था. ऐसे करते करते लेट अस से देयर इज दिसंबर में 50 लोग थे. ठीक है, एंड इफ आई पुट मैक्सिमम ऑफ X1 X2 अप टू X12, सो मैक्सिमम इनमें से क्या होगा? ये सब में से जो मैक्सिमम होगा वो, जिसमें मैक्सिमम हमारा 50 है, सो आंसर वुड बी 50. ठीक है, बट दे आर आस्किंग अस द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ X0. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल? स्मॉलेस्ट पॉसिबल कब होगा? स्मॉलेस्ट पॉसिबल तब होगा जब ये सब नंबर, ठीक है, रफली इक्वल होंगे, तब जाकर मैक्सिमम वाला नंबर सबसे छोटा होगा. ये सर नो, ये बात समझ आ रही है? आपको समझना है कि ये सबकी वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए. ये सुनो, सबसे कम कब होगी? जब सब लोग इक्वल होंगे. सब लोग इक्वल होंगे विच मीन्स 100 डिवाइड बाई 12 करेंगे. ये सुनो, 100 डिवाइड बाई 12 करेंगे, सो दैट विल गिव इज समथिंग 8 पॉइंट समथिंग. ये सुनो, बट वी हैव टू टेक सम इंटीजर नंबर. ये सुनो, सो ऑन एन एवरेज सब में यू कैन से 8 8 8 8 8 के करीब में होगा. सो 8 into 11 that makes it to 88. ऐसा होगा. ये सुनो, बराबर है. सो एंड बाकी टोटल कितने 100 लोग थे, सो दैट मीन्स एक नंबर आपका 12 हो जाएगा. सो दैट वे इट विल बी द एडिशन इज इक्वल टू 100. पॉसिबल है, बट स्टिल 12 मे बी लिटिल लॉन्गिश, है ना. 12 मे बी लिटिल लॉन्गिश, है ना. ठीक है, सो ओ सॉरी, मैंने 12 एड्जा कर दिया. 12 एड्जा सही है, बराबर है. ओके, नाउ दिस इज लॉन्गिश. नाउ लेट मी टेक इट एज 9. कुछ 9 है. ठीक है, इफ आई टेक 9 इंटू 11, ओके, सो दैट मेक्स इट टू 99. ठीक है, और किसी एक में 1 होगा, बराबर, सो दैट मेक्स इट 200. सो 8 तो पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि 8 मैं करने जा रहा था, तो आई कैन मैक्सिमम पुट 8 इंटू 11 मंथ्स. ठीक है, और फिर किसी एक में मुझे नंबर बड़ा करना पड़ रहा था. ये सुनो, और मुझे यहाँ तो मैक्स चाहिए ना, सो आई कैन नॉट गो विथ इट. सो आई हैव टू टेक अप सम नंबर लाइक 9. इफ आई टेक 9 गोज टिल 11, सो 99. फिर किसी एक में कम हो जाएगा, विच इज ओके. सो आंसर हो जाएगा आपका 9. सही है, ग्रेट. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 14 कमिंग अप. This says 2 persons are walking beside railway track at a respective speed of 2 and 4 km per hour. ठीक है, in the same direction. A train is coming from behind and crosses them in 90 and 10 seconds respectively. Yes or no? So what is the relative speed? The relative speed of a train and a man, the first man, is s minus 2. Yes or no? And the other man is s minus 4. Yes or no? That is how the idea is. बराबर है. So what happens? The you can say time taken, the difference between them would be L का distance है upon s minus 2 into 5 by 18, that is kilometer per hour is converted into meter per second. Okay, that is how we are doing meter per second. ठीक है, is equal to 90 seconds and second is L upon s minus 4 into 5 by 18 is equal to 100. Yes or no? So we are just cross multiplying it and we get L का value जो दोनों same है. Finally I need a value called time taken by train to cross the electric post is L by S. Okay, so this is 90S minus 90 into 2 into 5 by 18 is equal to 100S minus 100 into 4 into 5 by 18. Okay, so 90s right hand side पे जाएगा. I am left with 10s.
ठीक है, ये इधर जाएगा, 5 4 20, 20 इंटू 100 इज 2000, ठीक है, माइनस 900 अपॉन 18, so that makes it to 1100 by 18 is equal to 10s, so my s is equal to 110 by 18. ये मुझे दिया गया है, yes or no? ठीक है, now I have to find out the time required by the train to cross the post. ठीक है, so I need L का वैल्यू. How do I get L का वैल्यू? I put it here. ठीक है, कहीं पे भी मैं डाल दूं इसको. So L upon 110 by 18 minus 10 by 18 is equal to 90. So my L is equal to, है ना, क्या हो जाएगा, 110 minus 10 is 100, 100 by 18, 90 into 100 by 18, 18 5s are 90, so that will be some around 500. So my L would be 500 divided by 110 into 18. ये 0 0 कट गया, बराबर है, 8 5s are, that is 18 5s are 90, this is 900 upon 11. Okay, so this is approximately, है ना, 900 by 11 would be approximately 81 point something, which is 82 के आजू बाजू. So my answer would be 82. सही है, चलो बढ़िया. I think this was easy, simple calculation based question, very straightforward, nothing more, है ना. इक्वेशन सॉल्व करने थे and we'll get the answer. Question number 15. Now this is where a very interesting logical aspects which are coming up. How many distinct positive integer valued solution exist? ठीक है, for this equation, equation क्या है, x square minus 7x plus 11 to the power x square minus 13x plus 42, इसकी पूरी वैल्यू 1 है. अब 1 कैसे बनता है, कोई नंबर की पावर, लेट से a है, a की पावर 0 करूंगा तो 1 बनेगा, या 1 की पावर कुछ भी कर लूं तो भी 1 बनेगा. yes or no? सही बात है. so what is a possibility? there are 3 possibilities. ध्यान से समझना, ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पे गलती करने वाले हैं कि ये लोग ये कंसेप्ट के बाद स्टिल अगले स्टेप में गलती करेंगे. पहला कंसेप्ट है आपका कि ये जो भी नंबर है उसकी पावर में जो है उसको हम 0 कर देते हैं. सो व्हाट डू आई गेट, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42 इज इक्वल टू 0. ये सुनो, दैट इज केस नंबर 1. ये वाला अप्लाई कर रहा हूं मैं, सही है, ये 0 हो जाएगा, बराबर है. ठीक है, अब ये 0 करने के बाद उसको सॉल्व करना है और देखना है कि पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है कि नहीं. सो 42 है, ठीक है, 42 है, 6 7 are 42, 6 plus 7 is 5, so this is nothing but x minus 6, x minus 7 is equal to 0, so x is equal to 6 and x is equal to 7, that is 1. There are 2 possible, you can say, numbers. Second possibility is कि ये खुद नंबर, है ना, 1 बन जाए. ये सुनो, ये खुद नंबर 1 बन जाए. सही बात है, चलो बढ़िया. So this is x square minus 7x plus 11 is equal to 1. That is a possibility. ठीक है, चलिए बढ़िया. So this is x square minus 7x plus 10 equal to 0. So that makes it to x minus, you can say, 5 and x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 5 and x is equal to 2. So that these are 2 more values possible. Yes or no? Great. Another possibility could be कि मैं x की यहां पे, है ना, कोई भी इवन नंबर ले लूं, ठीक है, ओके, एंड ये मेरा जो नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, वो मेरा हो जाए माइनस नेगेटिव नंबर, सो -1 हो जाए, विच मीन्स ये पूरा वैल्यू -1 की कोई भी इवन पावर ले लूंगा तो भी मुझे 1 देगा. सो इफ आई कंसिडर दिस इज इक्वल टू -1, तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू मेरे क्या होने चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए. आई अप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज इक्वल टू 0. ये सर नो, ठीक है, ओके, चलो बढ़िया. सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, सॉरी, दिस वॉज 11, ओके, दिस इज now 12 is equal to 0. 4 3s are 12. Great. So what do I get? X
minus 4x minus 3 equal to 0. So there are two values possible, 3 and 4. Okay, there are two possible, 3 and 4. So if I put it here 4 तो ये इवन नंबर बन जाएगा. सही बात है. I have to check that. अगर आप मैं ये चेक नहीं करूंगा कि ये पावर मेरी इवन हो रही है कि नहीं हो रही है तो मेरे से गलती हो जाएगी. तो अगर मैं x की वैल्यू 4 डालूंगा तो ये मेरा 4 का स्क्वायर इवन, ये इवन और ये इवन, पूरा नंबर इवन. इफ आई पुट x इक्वल टू 3, सो दिस इज ऑड. ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड माइनस ऑड इवन है और इवन के साथ इवन इवन है. ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया. ये बहुत मजेदार सा सिनारियो था दोस्तों, इसको समझिए. मैंने क्या किया, आई हैव डेवलप्ड 3 केसेस. केस नंबर 1, पहला केस लिया मैंने कि भैया कोई भी नंबर उसकी पावर 0 करूंगा तो 1 आएगा. Yes or no? That is the first condition I have applied, which means x square minus 13x plus 42 को मैंने 0 कर दिया. केस नंबर 2 मैंने किया. What is केस नंबर 2? मैंने assume किया कि x square minus 7x plus 11 या तो 1 है, या केस नंबर 3 is x square minus 7x plus 11 is equal to minus 1. ठीक है, ये मेरे 3 केसेस हुए. पर इस कंडीशन में अगर ये -1 है, मतलब ये पूरा नंबर -1 है, तो -1 की पावर x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 42, ये जो भी नंबर होगा ये पूरा इवन होना चाहिए, तो ही जाकर इसकी वैल्यू 1 बनेगी. तो मुझे ये तीन केसेस प्रॉपर वे में चेक करने हैं और ये पूरा जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है विद अ पॉजिटिव इंटीजर, ये मुझे देखना पड़ेगा. और वो भी डिस्टिंक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा. और उसके बाद मेरा आंसर आया 6. समझ आया आपको? ठीक है, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन था. एक स्टूडेंट का इक्वेशन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी यहां से बहुत अच्छी तरीके से चेक हो रही है. ठीक है दोस्तों, ये बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है. अगर आप इसको अच्छे से ये अलग अलग केसेस अपने दिमाग में डेवलप कर पा रहे हो, इट इज गुड. एज अ मैथमेटिशियन यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 says area of the region which satisfies this inequalities. ठीक है, what is this inequality? अब ये इनइक्वालिटी क्योंकि छोटे नंबर्स है, आपको इसका ग्राफ बनाते आना चाहिए, तो आप बहुत जल्दी कर पाओगे. बगैर ग्राफ इसको सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो पहला कंडीशन आपका क्या है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सो दिस इज y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ है. ये लाइन है ना, इसके ऊपर की बात है. y इज लेस देन और इक्वल टू 1, सो दैट इज ये 1 मान लेते हैं अपन. ठीक है, सो y इज इक्वल टू 1. ये इसके नीचे, मतलब इसके नीचे और इसके ऊपर, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है. नाउ आई हैव 2 इक्वेशंस. ठीक है, ये जब मॉड्यूलस है, सो आई हैव 2 इक्वेशन. 1 इक्वेशन व्हेन आई एम अज्यूमिंग x इज पॉजिटिव, सो x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 1. दूसरा इक्वेशन है मेरा, x अगर नेगेटिव है तो -x माइनस y लेस देन और इक्वल टू 1 है, विच इज x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है. ठीक है, सो दिस आर 2 इक्वेशंस फॉर मी. नाउ आई हैव टू ड्रॉ दिस 2 इक्वेशन. हाउ डू आई ड्रॉ दिस? x माइनस y इज लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, आई पुट x, दिस इज y, व्हेन x इक्वल टू 0 y is equal to -1, and when y is equal to 0 x equals to 1. okay, चलो बढ़िया. So when I'm putting x equal to 0, y is equal to -1, so this is -1, and when y equal to 0 x equals to 1, so this is this. So if I join, और ये बोलता है उससे नीचे होना चाहिए, so I draw this. This is a line I am drawing it. okay, this is a line I am drawing it. अब ये बोलता है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0 कौन से एरिया में होगा, है ना. हमेशा जब आपको ऐसी इनइक्वालिटी देके रखी है, बहुत स्टैंडर्ड तरीका, आप इक्वेशन बना दीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, या तो हम लाइन के इस तरफ होंगे या लाइन के इस तरफ होंगे. ठीक है, व्हाट इज अ बेटर वे टू लुक एट इट कि किस तरफ होंगे. सो वी टेक सम नंबर. यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है हमारा, ये हमारा y इज इक्वल टू 0 वाला लाइन था, ये हमारा x इक्वल टू 0 वाली लाइन है. ठीक है, सो दिस इज 0 0. सो इफ आई पुट 0 0, 0 0 is less than 1, हाँ, which means 0 0 उस एरिया में आना चाहिए. सो देयरफॉर ये पार्ट नहीं होगा, इसके ऊपर गिना जाएगा. सही है, ग्रेट. अगला इक्वेशन लिखते हैं हम, ये वाला, दैट इज x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1. सिमिलरली x एंड y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1,
एंड व्हेन y इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल्स टू -1. सो दिस इज y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1 एंड दिस इज x -1. ठीक है, ये ऐसे लाइन जाएगी. ओके, अब वापस सेम तरीका कहां पे होगा, ये सनो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ये देखना पड़ेगा. सो इट सेज यू कैन से वी पुट 0 0. इज 0 0 ग्रेटर देन -1? हाँ, 0 0 इज ग्रेटर देन -1, सो देयरफॉर ये एरिया में होगा. Yes or no? So which area I am looking at? I am looking at, you can say, the area which is surrounded by, है ना, ये 4 इक्वेशंस, ये ट्रेपेजियम हम देख रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. Yes or no? हम ट्रेपेजियम दिख रहे हैं. ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है. सो व्हेन दिस इज गोइंग फ्रॉम -1 1, ठीक है, सो दिस विल डेफिनेटली गो टू कहां तक जाएगा, इसको ये हो जाएगा आपका 2, है ना. दिस इज -2 जो मैंने इक्वेशन में डाल के खुद ही कैलकुलेट कर दिया. सो ये बेस हो गया आपका 4 का, ये 1 1 था, सो ये हो गया आपका बेस 2. हाइट है आपकी कितनी, दिस इज 1. ओके, सो ट्रेपेजियम का एरिया हो गया, ट्रेपेजियम का एरिया इज 1/2. ठीक है, 4 + 2 × 1, सो 4 + 2 6/2 इज 3. आंसर इज 3. ओके, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, आपको इसको 2 बार करना चाहिए. ग्राफ के द्वारा कैसे एरिया निकालते हैं, दैट इज व्हाट यू नीड टू लर्न. ठीक है, ग्राफ और ग्राफ के साथ जो डिजाइन बनेगी, उस डिजाइन के साथ एरिया बनाना बहुत बड़ी बात है. क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है. अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन. सो देयर इज अ कोन has a height of 27 centimeter. इसका रेडियस कुछ है, we don't know what is that, but we know the height is 27 centimeter. It is cut into 2 pieces along a plane parallel to the base at a height of 18 centimeter from the base. So हमने इसको यहां से कट किया. ये नीचे वाली हाइट है हमारी 18, ऊपर वाली हाइट हो गई आपकी 9. 9 + 8 is 27, बिल्कुल सही है. विच मीन्स पूरा हाइट इज डिवाइडेड इनटू, है ना, 1:3 का रेशियो. अगर मैं इसको ट्राइंगल लेता हूं ABC और ये DE लेता हूं, सो आई एम श्योर यू नो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और AD अपॉन AB का रेशियो है 1:3. सो देयरफॉर DE अपॉन BC का रेशियो भी होना चाहिए 1:3. सो DE अपॉन R, सो DE इज इक्वल टू R/3. मतलब ये क्या हो गया आपका R/3 और ये 9 है. ठीक है, नाउ व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड, सो आई हैव 2 कोन्स, एक ऊपर वाला कोन फिर एक बड़ा वाला कोन. इफ द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द 2 पीसेस इज 2 to 5, 2 पीसेस का वॉल्यूम, विच मीन्स बड़ा जो कोन है उसका वॉल्यूम है 1/3 पाई r² × h. उसमें से ऊपर वाला माइनस करूंगा तो मुझे नीचे वाला जो छोटा सा फ्रस्ट्रम ऑफ कोन मिलता है उसका वॉल्यूम मिलेगा, विच इज 1/3 पाई r, कितना है उसका R/3 स्क्वायर × 9. तो ये फ्रस्ट्रम मिला. ठीक है, ओके, और जो ऊपर वाला है, मतलब इसमें से मैं वापस माइनस करूंगा 1/3 पाई R/3 होल स्क्वायर × 9. ठीक है, ओके, सो दैट विल गिव मी 225. ठीक है, सो बेटर है मैं इसको ऐसा ना करूं, मैं इसको ना रेशियो बना दूं. सो दिस 1/3 पाई R/3 होल स्क्वायर × 9. ये फ्रस्ट्रम है, ये फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम है, नीचे ऊपर वाले पार्ट का वॉल्यूम है. ये सुनो, दैट इज हाउ दिस सिनेरियो इज. सो अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. π/3 और R² सब में कॉमन है. ठीक है, तो वो ऊपर नीचे कट जाएगा. यहां पे ऊपर बचेगा, ये जगह पे 27, यहां पे 3² इज 9, 9 9 कट गया. सो दिस इज 1 और नीचे बचा आपका 1. सो द रेशियो इज, है ना, 27 - 1, विच इज 27 - 1 upon 1, which makes it to be some around 26:1 का रेशियो बचा. किसका रेशियो है, फ्रस्ट्रम अपॉन छोटा वाला कोन. यस और नो. सो डिफरेंस क्या होगा उनका, 26 - 1 which is 25.
ठीक है, विच इज 25। समझ आया आपको, है ना? मतलब इसका वॉल्यूम है आपका 26x, इसका वॉल्यूम है आपका 1x, यही तो रेशियो आया था। ये सुनो, टोटल वॉल्यूम हो गया आपका 27x, ठीक है, ओके। अब इन्होंने बोला दोनों का डिफरेंस 26x minus 1x is equal to 225, which is 25x is equal to 225, x is equal to 9, and my total volume is equal to 26 plus 1, which is 27x. 27 into 9 will be 243. काफी इजी था, टोटल वॉल्यूम इज 27 और ये डिफरेंस 225 था, ठीक है। बहुत ही मजेदार तरीके से ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि कैट वाले एक अच्छी तरीके से आदमी का, है ना, दूध का दूध और पानी का पानी निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। ग्रेट। नंबर 18, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ रोम्बस। एक रोम्बस है, वी ऑल नो रोम्बस का प्रॉपर्टीज, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड देयर डायगोनल्स, उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स अगर एक 12 का एक 16 का है, मतलब ये 6 है, सॉरी ये बड़ा है तो इसको 8 ले लेते हैं, दिस इज 8, दिस इज 6, ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 6 है, तो साइड कितने की हो गई? 10, ठीक है। क्या पूछा है? इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया है, ओके, एंड दे आर आस्किंग एरिया ऑफ अ सर्कल टू द एरिया ऑफ रोम्बस। अब सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि सर्कल के सेंटर से अगर मैं टेंजेंट वाले पॉइंट को डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करूं, सो दैट विल बी 90 डिग्री। सही है? पक्का? चलो बढ़िया। सो आई एम एबल टू सी माई ट्राइंगल AOB का एरिया है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री पे मिलते हैं डायगोनल्स। सो ये जो मेरा 8 है, ये 6 है ना, तो वो मुझे 1/2 6 इंटू 8 कर देगा, इज इक्वल टू 1/2 ये हाइट, अगर ये हाइट है दैट इज अ रेडियस, है ना, इंटू बेस इज 10, तो यहां से मुझे रेडियस मिल गया। अब मेरा काम बहुत इजी हो गया, 8 इंटू 6 बाई 10, सो माई रेडियस इज इक्वल टू 4.8, ठीक है। नाउ व्हाट इज, है ना, what is my you can say area of a circle? Area of a circle is pi r square, okay, so that is pi into 4.8 का स्क्वायर अपॉन मुझे चाहिए रोम्बस का एरिया। रोम्बस का एरिया इज 1/2 d1 d2, 1/2 डायगोनल की लेंथ विच इज 12 इंटू 16, सो दिस इज पाई 48 इंटू 48 अपॉन 1/2 12 इंटू 16 इंटू 100, ठीक है। 16 3 जा 12 गुना 4, ओके, ठीक है, और ये हो गया 4 गुना 3 12, 12 और 2 24, 24a बाई 100, ठीक है। और हम इसको करते हैं 24a पाई बाई 100, इसको हम काटते हैं 4 से, सो ये हो जाएगा मेरा 6 पाई बाई 25। सही है? चलो कंफर्टेबल है, 6 पाई बाई 25 इज माई आंसर, ठीक है। चलो ग्रेट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, लिविंग होम एट द सेम टाइम अमल reaches ऑफिस at 10:15 AM if he travels at 8 किलोमीटर पर आवर। 8 की स्पीड से जाएगा तो 10:15 पे पहुंचेगा, एंड 9:40 पे पहुंचेगा अगर वो 15 की स्पीड पे जाएगा। ये सुनो, ठीक है। सो ही इज कवरिंग अ डिस्टेंस विच इज सेम d/8 इज इक्वल टू, उसको कुछ टाइम लगा, ठीक है, एंड d/15 कुछ टाइम लगा, और दोनों टाइम का डिफरेंस इज इक्वल टू 9:40 और 10:15 के बीच का, विच इज 35 मिनट। ये सुनो, सो माई यू कैन से d is 7d is equal to 8 into 15 into 35 by 60, ठीक है। सो माई d is equal to 15 4 जा 4 2 जा 7 5 जा, माई d is equal to 10 का डिस्टेंस, ठीक है। सिंपल है, ग्रेट। एट वॉट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ही मस्ट ट्रेवल सो एज टू रीच ऑफिस एट 10 AM, ओके, 10 AM को पहुंचना है, ठीक है, तो कितना। सो बेसिकली
बेसिकली उसको कितना टाइम लगता है अगर वो 8 की स्पीड पे जाता है, ठीक है। अगर वो 10/8 की स्पीड पे जा रहा है, ठीक है, सो द टाइम रिक्वायर्ड विल बी बेसिकली कितना होगा, 10/8 इज नथिंग बट 1.25, इसको हमने किलोमीटर में रखा है, हाँ 1.25 किलोमीटर लगेगा उसको, सॉरी 1.25 आवर लगेगा, विच मीन्स 1 आवर एंड 15 मिनट्स लगेगा, विच मीन्स वो घर से निकल कितने बजे रहा है, 10:15 में पहुंच रहा है, मतलब घर पे 9 बजे निकल रहा है, ये सनो, और उसको 10 बजे पहुंचना है, 1 घंटे में पहुंचना है, 1 घंटे में उसको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस काटना है, विच मीन्स यू कैन से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल, ठीक है, ओके, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ही हैज टू ट्रैवल इन 60 मिनट्स, ठीक है, ओके, सो उसको जाना पड़ेगा, डिस्टेंस इज 10, टाइम अवेलेबल इज 1 आवर, oh he's not living at 9 a.m. he's living at 9:10 a.m. so 10 किलोमीटर, अब उसके पास टाइम कितना अवेलेबल है, 60 मिनट्स नहीं है, इट इज 50 मिनट्स, 50/60 is what we apply in hour, so this is 10 into 60 by 50, ठीक है, that makes it to 12 किलोमीटर पर आवर। इजी है, आई थिंक दिस इज इजी, ठीक है। मैं कहीं फंस गया था, आई डिड नॉट रीड दिस, बहुत बार ऐसा हो जाता है when we are into you can say a calculation, we miss out a particular data which is not really okay। चलिए ग्रेट, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ABC आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट A into B is equal to 432, B into C is equal to 96, C less than 9 है, and we have to find out smallest possible value of A plus B plus C कितना होगा, okay, we divide this, okay, B भी चला जाएगा, I get A by C is 432 by 96, ठीक है, so this is 8 से कटेगा, 8 1 8 2 जा 8 5 जा 40 and this is 54, वापस कटेगा ये 3 से, so 6 से कटेगा, 6 2 जा and this is 6 9 जा, okay, which means C has to be multiple of 2, okay, C has to be multiple of 2 and A will be multiple of 9, उनके बीच में रेशियो 9:2 का होगा, so I will try and make possibilities, C less than 9 है, which means C की वैल्यू 8 हो सकती है, अगर C की वैल्यू 8 हुई, so A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 हुई तो 4, this is 36 है ना, ये 36 हो जाएगा, C की वैल्यू अगर 6 हुई, ठीक है, so 9 3 जा 27 हो जाएगा, C की वैल्यू अगर 4 हुई, so A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 18, C की वैल्यू हो गई अगर आपकी 2, तो A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। वहां से आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B, और इन सबका एडिशन करूंगा मैं, और मैं देखूंगा सबसे छोटा कौन सा बनता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट अस से अगर C मेरा 8 है तो B मुझे मिलेगा, क्योंकि 96 तो लाना ही लाना है, ये सुनो, C अगर 8 है सो 8 से कटेगा, सो ये मुझे मिलेगा 12, ओके, सो इफ C is equal to 6, B is equal to 16, if C is equal to 4, so this is 4 2 जा 8, ठीक है, this is B is equal to 24 and C is equal to 2, I get कितना 48, B is equal to 48, ठीक है। I have to add them up, so ये हो गया 12 + 8 20, 20 और 36 is 56, पहले केस में 56, 16 + 6 is 22, 22 + 27 that will make it to 49, okay, छोटा नंबर आया, वेरी गुड, ठीक है। देन आई गेट 24, 18 + 4 is 22, 22 + 24 is 46, और छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई दिख नहीं रहा है, सो आई विल मार्क इट ऑटोमेटिकली, आई विल नॉट इवन चेक दिस बिकॉज दैट इज एनीवे B is equal to 48, ठीक है। तो काफी लंबा हो गया, बट मतलब काफी बड़ा नंबर हो गया है ना, बट आई थिंक दिस इज एन इजी वन, ठीक है, पॉसिबल है, आप आसानी से करने के काबिल बनेंगे। ये है आपके बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके। Yes or no? I'm sure you must have enjoyed our module। अगर आपको ये जेन्युइनली पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है, स्प्रेड करिए इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए एंड दे विल गेट टू यू कैन से लर्न फ्रॉम इट, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस। डोंट मिस आउट टू ज्वाइन प्रो टैलेंट, वी आर कमिंग अप विद अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज फॉर यू, ठीक है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर आए, आप उसको लेना भूलिएगा मत, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे।